مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کی قوت اور قدرت کو دیکھیں گے، سنیں گے کہ ہمارا خداوند قادر مطلق ہے، کتنی قوت طاقت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ میں کلام مقدس میں سے پڑھوں گا۔ لوکا اس کا 8 باب اور 22 آیت سے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے، اور اس نے ان سے کہا، آؤ جھیل کے پار چلیں۔ بس وہ روانہ ہوئے، مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا، اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خطرہ میں تھے۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کو کے زور شور کو جھڑکا، اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح کی قوت اور قدرت کو، کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کس قدر باپ کی طرف سے اختیار ہے، کیونکہ ہم مسیحیوں کا ایمان ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہیں، کیونکہ خداوند بھی یوحنا میں کہتا ہے 17 میں کہ باپ مجھ میں اور میں باپ میں ہوں۔ اسی طرح باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے، اور پاک روح اکثر آتا، شاگردوں پر ظاہر ہوتا۔ جب خداوند یسوع مسیح دفنائے گئے تو شاگرد ایک کمرہ میں جمع تھے، اور ان پر روح القدس نازل ہوا، تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ خداوند یسوع مسیح نے جاتے وقت آسمان پہ کہا، جاتے ہوئے کہ میں یہاں ٹھہرے رہو، میں تمہارے لیے تمہارا رہنما، جو تمہارا مددگار بھیجتا ہوں۔ پہلے روح القدس آیا کرتا تھا، پر لوگ اتنے واقف نہیں تھے، پر خداوند یسوع مسیح نے متعارف کروایا اور بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیونکہ انہوں نے یہاں زمین پر رہتے ہوئے اپنا وہی اختیار جو باپ کے پاس تھا، جیسے دنیا میں آنے سے پہلے باپ کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ پہلے روح القدس کی شکل میں تھے۔ کیونکہ جب جبرائیل مدر میری پر ظاہر ہوئے تو اس نے کہا، سلام ہے پرفضل، خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا۔ جیسے ہم روح القدس کو، روح خدا کو تسلیم کرتے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس کو، کیونکہ خدا جو ہمارے اندر ساتھ رہتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ لکھا ہے کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے مکانوں میں نہیں رہتا، وہ ہمارے دل میں رہنا چاہتا ہے، اور ہم بھی اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہر وقت اس کی پرستش میں رہتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ قوت اور قدرت والا خدا ہے۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے تو وہ پورا اختیار ان کے پاس تھا، اختیار ان کے پاس تھا، لے کر آئے ساتھ، کیونکہ جب بھی جہاں کہیں میریکل کرتے، جو کام کرتے، بالکل باپ کی طرح پورے اختیار کے ساتھ کرتے۔ جب کائنات نوح کے دور میں طوفان آیا تو باپ انہیں طوفان کو برپا کیا، اسے ختم کیا۔ اسی طرح جب شاگردوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح جھیل میں کشتی پر جا رہے تھے تو وہاں کشتی میں پانی سے بھرنے لگی، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، تو
शागिर्दों ने उठाया, वो सो रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कहा, साहब हम डूबने वाले हैं, डूबे जाते हैं, हमें बचा। खुदावंद यीशु मसीह ने उठकर कहा कि ऐ कामित कादू, तुम्हारा ईमान कहाँ गया। कहा जाता है कि यीशु मसीह ईमान के बानी है। हमें हमेशा हर वक्त उन्हें तकते रहना चाहिए, याद रखना चाहिए, खुदावंद को कभी नहीं भुलाना चाहिए। तो शागिर्दों ने कहा कि ये कौन है, इसका कहना हवा और पानी भी मानते हैं। जब बाप ने भी, जब दुनिया कायनात बनाई गई, तो कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। तो खुदा बाप ने हुक्म दिया पानियों को, ये पानी पानियों से जुदा हो जाए, निसफ हिस्सा अलहदा हो जाए, जिनके दरमियान फिर फजा, सितारे, चांद, सूरज, आसमान बनाए गए सब। देखें उसकी कुदरत कि एक हिस्सा जो निसफ नीचे हुआ, तो फिर खुदा ने कहा कि खुश्की अलहदा और पानी अलहदा हो जाए। पानी को एक तरफ किया तो उसे समुंदर कहा गया, और खुश्की को ज़मीन कहा गया। अब जो निसफ हिस्सा था, तो नीचे जो समुंदर है, आप सब जानते हैं कि वो किस कदर जब जोश मारता है तो इंसान की कोशिश से बाहर है, सिवाय के खुदा की। एक खुदा है जिसने उसको दरवाज़ों से उसके किनारों को बंद किया है, और उसने समुंदर को हुक्म दिया है कि खबरदार तेरी बेपरती हुई लहरें इससे बाहर ना आए। और जो निसफ हिस्सा चांद, सितारों, फजा से, आसमानों से ऊपर है, क्योंकि जब तूफान आया तो उसमें ये अल्फाज आते हैं कि समुंदर के सोते खुल गए, आसमान की आबशारें खुल गई। समुंदर के सोते फूट पड़े और आसमान की आबशारें खुल गई। वो समुंदर जो आसमानों से भी ऊपर है, फजा से ऊपर है, क्योंकि अयूब की किताब में खुदा कहता है कि तू अयूब को कहता है कि तू जानता है, जब अयूब शिकवा करता है कि औलों का खजाना कहाँ है, वो मैंने आसमान पर रखा है मुसीबत और जंग के लिए। आप सोच सकते हैं कि जो नीचे पानी है तो वो किस कदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जिसका किनारा नहीं मिलता। तो जो ऊपर है वो किस कदर और कैसा होगा। लेकिन खुदा ने इंसानों से वादा किया है कि मैं अपनी कमान बादलों पर रखता हूं, मैं फिर कभी इंसानों को पानी के साथ नहीं मारूंगा। जब बादल चढ़े, ये कमान नजर आए, तो मुझे मेरा वादा याद आए। तो फिर खुदा का वादा है, जब बाप का वादा है, तो यीशु खुदावंद भी ऐसा ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब बाप ने वादा किया और बेटा पानी का तूफान ले आए, आंधियां ले आए और मखलूक को रूए ज़मीन से मिटा डाले, ऐसा नहीं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बाप को तरजीह देते हैं, उसकी हर बात को पहले रखते हैं, और जो कलाम उन्होंने बाप से हासिल किया, उन्हें बताया गया, उन्होंने हम सब तक, मखलूक तक पहुंचाया। क्योंकि कलाम में कहते हैं कि बाप, जो कलाम तूने मुझे दिया, मैंने इन तक पहुंचा दिया। इन्होंने सीख लिया, हासिल कर लिया। जैसे तूने मुझे भेजा था, मैंने इनको भेजा है कि जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें वो तालीम दो जो मैंने तुम्हें सिखाई है। बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदावंद यीशु मसीह ये भी कहते हैं हमें कि जान देने तक वफादार रहो, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। उसका उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जब दुनिया में थे तो उन्होंने हर तरीके से हमारे गुनाहों की खातर, हमें मुसीबतों से निकालने के लिए, गुनाहों की दलदल से निकालने के लिए, हमारे गुनाहों की खातर अपनी जान का फिदिया दे दिया, और उसके खून से हम धोए गए हैं, पाक साफ हुए हैं, और
खुदावंद यीशु मसीह हमें ये भी हमारे साथ प्रॉमिस करते हैं कि जो बाप पर ईमान रखते हो मुझ पर भी ईमान रखो, जो कोई मुझ पर ईमान रखेगा, जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होगी। बाप से हमारी शिफायत करते हैं कि बाप जैसे मैं और आप एक हैं, इनको भी एक बना ले। मेरे अजीजों, खुदावंद के पास बेशुमार बहुत ज्यादा खजानों का मालिक है, और वो हमें अपने बेटे और बेटियां कहता है। आप जानते हैं कि बेटियों और बेटियों का क्या हक है। बाप की जो प्रॉपर्टी होती है उस पे बेटे और बेटियों का हक होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि आप किस कदर, कितनी और कैसे वो प्रॉपर्टी चाहते हैं जो बाप जिन चीज़ों का मालिक है। देखें, नजर दौड़ाएं, सोचें, आसमान, जमीन, सितारे, चांद, हर चीज़ बाप की है। अगर हमें वो बेटा कहता है जैसे यीशु खुदावंद, तो फिर हम किस कदर रिच हुए। लेकिन जितना भी आपने सोचा है वो भी कम है, क्योंकि खुदा बाप एक इंसान से, आदम से पूरी कायनात बना देता है। इब्राहिम को कह दिया कि तेरी औलाद सितारों की मानद होगी, और यकूब को इसराइल का खिताब दे दिया, और एक बंदा से इसराइल बना दिया। इतनी मखलूक बढ़ गई कि उससे फिरौन, उसकी फौजें डरने लगे कि अब इनको दबा कर रखो, अब ये हमें तंग करेंगे। सो खुदावंद तो कुन करता है और हर चीज मौजूद हो जाती है। अब जितना भी सोचें कम है, और खुदावंद के खजानों में कोई कमी नहीं। आसमान और जमीन हर चीज उसके जलाल से मामूर है और भरी पड़ी है। सुलेमान को जब हिकमत देगी तो हर चीज उसे मिली, उसने हिकमत से हर चीज को पाया, और दुनिया में हर शख्स ने उसे सराहा, उसकी शक्ल देखने को तरसते थे। सो मेरे अजीजों, उम्मीद है कि हम खुदावंद के आइन पर चलते हुए हम हमेशा खुदावंद को खुश व खुर्रम रखेंगे, उसे गुस्सा नहीं दिलाएंगे। उससे गुस्सा दिलाने से होता है, जब इसराइल खुदावंद को गुस्सा दिलाते तो वबा आती, जैसे आजकल कोरोना की वबा चली हुई है। फिर फिनास खुदा का खादम दुआ करता तो वबा टल जाती। सो मैं सब दानिश्वरों को अपील करूंगा, खादमों को, कि दुआ करें कि आसमान के नीचे ये जो वबा कोरोना की चली है ये ख़त्म हो, जड़ से ख़त्म हो। खासकर हमारे मुल्क में, क्योंकि हम इसमें रहते हैं, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सब महफूज रहें और हमारा मुल्क बढ़े और तरक्की पाए। सो मेरे अजीज़ों, मैं दुआ करूँगा कि खुदावंद आपको, मुझे, सबको बरकत दे, और हम खुदा की बरकत हासिल करते हुए उसकी खुशनुवीदी में रहें। कादिर मुतलक आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद तू जलाल का बादशाह है। तू खुदावंद हमें बेटे और बेटियां होने का हक देता है, और हमारी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हमें अता करता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, उससे भी ज़्यादा तू हमें देता है। हमारी ज़िंदगी के सांस हमें बहाल रखता है, हमारी उम्रों को दराज करता है। तूने अय्यूब नबी को की उम्र 140 साल और बढ़ा दी, पहले से भी ज़्यादा दिया। दोबारा उसके बेटे और बेटियां हुए, और उसकी इतनी चीज़ें बढ़ गई, उम्र बढ़ गई कि दुनिया में एक मिसाल बन के रह गई। पासा खुदावंद हमेशा तेरी परस्तिश करें। जो चैनल को देख रहे हैं उनको बरकत देना, ताकि खुदावंद हम 100 गुना फल लाने वाले बने। तू जलाल का बादशाह है, सब कुछ करने पर कादिर है। बख्शे हमेशा तेरी खुशनुवीदी में रहें, तुझसे बरकत हासिल करें। खुदा बाप यहोवा यरी मांगते हैं तेरे बेटे यीशु नासरी के मीठे और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। यीशु के नाम में, मसीह के नाम में, आमीन।